السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق علیہ۔ یہ مہینہ شعبان کا چل رہا ہے اور ایک دو روز تین روز کے بعد 15ویں تاریخ آنے والی ہے۔ اس مناسبت سے ہمارے ملک اور اکثر بیشتر نام نہاد مسلمان طرح طرح کی خرافات سنت سے ہٹ کر کے نئی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتی ہے، جبکہ اس مہینے میں کوئی الگ سے عبادت یا کوئی خاص کام کرنے کی صراحت کتاب و سنت میں نہیں ملتی ہے۔ البتہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ شعبان میں بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ اس عمل کے علاوہ کوئی اور خاص عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور اسلاف اور صحابہ کرام کی سیرت سے بالکل نہیں ملتی ہے۔ لیکن ہمارے ہندو پاک میں نام نہاد مسلمان اس شعب اور بالخصوص 15ویں شب کو، 15ویں رات کو اور 15ویں دن کو، 15ویں رات میں عبادت کرتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں اور 15ویں تاریخ کے دن کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ آئیے آج کے اس درس میں کچھ باتیں شعبان کی بدعات کے تعلق سے بیان کی جائے۔ پہلی چیز ہے شعبان کی بدعتوں میں سے کہ اہل بدعت شعبان کے مہینے کو نبی کا مہینہ قرار دیتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سارے ایام، سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ سارے دن اور یہ رات اور یہ سال یہ اللہ رب العالمین کی توحید کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے چلتا ہے، لہذا اس مہینے کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنا یہ صریح گمراہی ہے۔ یہ شعبان نبی کا مہینہ نہیں ہے، یہ شعبان اللہ کا بنایا ہوا مہینہ ہے۔ اسی طریقے سے شعبان کی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ ہے قبروں کی زیارت کرنا۔ 15ویں تاریخ کو بہت سارے لوگ رات میں قبروں کی زیارت کرتے ہیں۔ دیکھیے، قبر کی زیارت کرنا غلط بات نہیں ہے، یہ سنت ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے، لیکن اجتماعی سطح پر 15ویں تاریخ کو اور رات میں سب لوگ جا کر قبرستان میں اکٹھا ہو جائیں اور جا کے قبروں کی زیارت کریں، تو یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ تیسری بدعت اس میں یہ ہے روحوں کی آمد کا تصور رکھنا۔ اہل بدعت یہ کہتے ہیں کہ اس شعبان میں مردوں کی روحیں آتی ہیں۔ 15ویں تاریخ کو رات میں تمام جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی روحیں گھروں میں واپس۔ عجیب بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس روحیں ہوں اور اللہ رب العالمین کو قید کر کے رکھا ہے اور وہاں سے قید خانے سے نکل کر کے دنیا میں واپس آ جائے، یہ بالکل عقل کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب روحیں گھروں میں آتی ہیں تو پھر ایک عجیب حماقت ہے کہ سارے لوگ قبرستان جاتے ہیں، یعنی وہاں سے روحیں گھروں میں آتی ہے اور گھر والے واپس قبرستان میں جاتے ہیں۔ تو یہ روحوں کی آمد کا آنا اور یہ عقیدہ رکھنا یہ ہندوانہ رسم و رواج ہے، ہندوانہ طریقہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔
चौथी बिदात ये है कि कब्रों को संवारना। जब 15वीं शाबान आती है तो लोग कब्रों को चूनागज करते हैं और उसमें नई मिट्टी डालते हैं, कब्रों की तजदीद करते हैं। ये गलत तरीका है, सुन्नत से और शरीयत से इसका कोई वास्ता नहीं है। 5वीं बिदात इस महीने में ये है कि चिरागा करना। चिरागा करने का मतलब ये है कि 15वीं शब को घरों को, कब्रों को, शहरों को और गलियों को रोशन करना। ये हिंदुआना रस्म व रिवाज, जैसे दिवाली के मौके पर हिंदू लोग, मुशरिक लोग घरों को कुमकुमों से और रोशनी से मुनव्वर करते हैं, दरअसल ये तरीका वहीं से लाया गया है। इस्लाम में चिराग की कोई हदीस नहीं मिलती है, हत्ता कि बहुत सारे नाम नहाद मुसलमान कब्रों और दरगाहों पर भी कुमकुमे और ये चिराग रोशन करते हैं। इसमें माल की जहाँ बर्बादी है वहीं पर वक्त की भी बड़ी बर्बादी है। तो चिरागा करना ये भी हदीस से साबित नहीं है। अपने घरों में रोशनी कीजिए, जहाँ रहना वहाँ रोशनी कीजिए, ये हमारी ज़रूरत है। लेकिन बिला वजह, बिला सबब अपने माल को ऐसे ही पानी में बहा देना और चिरागा करना, ये माल की बर्बादी है, इसराफ और तब्जीर है, फजूल खर्ची है। इस्लाम इससे हम उतना ही इस्तेमाल करें जो हमारे लिए ज़रूरत की चीज़ है। जो ज़रूरत से ज़ायद है वो शैतानी काम है। इस शाबान के महीने में एक बिदात जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में राइज है वो है हलवा खोरी। लोग हलवा पकाते हैं। हलवा खाना खिलाना कोई मजमूम चीज़ नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं, हराम नहीं है। लेकिन ख़ास तौर से हलवा 15 शाबान को बनाएं और फिर ये अकीदा और ये तसव्वुर रखें कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का जब दांत शहीद हो गया था, टूट गया था, तो आपने मीठी चीज़ खाई थी। तो शाबान में कहाँ आपका दांत टूटा था? जंगे उहद में दांत आपका टूटा था तो वो शव्वाल का महीना था। और दूसरी बात ये है कि हलवा खाना, हलवा खिलाना और मीठी चीज़ का इस्तेमाल करना, खाना, ये तो जायज़ है, लेकिन ख़ास दिन में, ख़ास वक्त में मखसूस तरीक़े से उसको पका करके नज़र नियाज करना, गरीबों में सदका करना, ये तरीक़ा शरीयत इस्लामिया में नहीं मौजूद है, सलफ़ के, लिहाजा इससे बचना चाहिए, भी बिदात है। 7वीं चीज़ जो इस महीने में आमतौर पर लोग अंजाम देते हैं, घरों की सफाई। शाबान का महीना आते ही, शब बरात का मौसम आते ही लोग अपने घरों को साफ़ करते हैं, दुकानों को साफ़ करते हैं और कब्रों की सफाई करते हैं। सफाई सुथराई हमारे दीन का एक हिस्सा है, निस्फ ईमान है, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन सफाई सुथराई के अमल को ख़ास कर लेना ये तरीका गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और सहाबा से इसकी साबित नहीं है कि शब बरात की मुनासबत से घरों और मकानों की सफाई, ये तरीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। इसी शाबान के महीने को और 15वीं शब को लोग शब कद्र का दर्जा देते हैं। शब कद्र का ताल्लुक रमज़ान से है, जो अगले महीने में इंशाअल्लाह आएगा। लेकिन 15वीं तारीख को, शाबान की 15वीं तारीख को लैलतुल क़द्र तस्वूर करना, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है रमज़ान की और शब कद्र की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शब कद्र के बारे में कहा, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों की रातों से अफजल है। और उस रात को शाबान की 15वीं रात से जोड़ दिया जाए, ये बहुत बड़ी गुस्ताखी होगी। शब बरात की बिदात व खुराफात में से, शाबान की बिदात में से एक बिदात ये है, एक गलत काम ये है कि आतिशबाजी करना, पटाखे दागना। ये आतिशबाजी, ये एक मुसलमान की, एक मोमिन की पहचान हो सकती है? ये माल का ज़िया है। इससे सौती आलूदगी और फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है और इससे एक लोगों को कराहत और बदबू हासिल होती है। आतिशबाजी करना, पटाखे दागना, ये सब गैरों का तरीक़ा है। इस्लाम में इसका कोई तस्वुर नहीं है। ये माल का ज़िया है, माल की बर्बादी है। शब बरात के ताल्लुक़ से या शाबान के महीने में जो चीज़ें बिदात के तौर पर जड़ पकड़ ली हैं, उसमें से एक चीज़ ये है कि 15वीं शाबान को रोज़ा रखना।
रोज़ा रखना अच्छी बात है, नफली बात हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन 15वीं शाबान के दिन को रोज़े के लिए ख़ास कर लेना, ये अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम की सुन्नत साबित नहीं है। और जो इस बाब में हदीस पेश की आती है, हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ़ है, कमज़ोर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15वीं तारीख का रोज़ा आपने नहीं रखा है। इसी तरीके से शब बारात को, 15वीं शाबान को इबादत की रात समझना। इबादत हम रात में कर सकते हैं और अच्छी चीज़ है, रात में क़याम कीजिए, अच्छी इबादत है, अल्लाह को बहुत पसंद है। लेकिन इस 15वीं शब को ख़ास कर लेना और ये कहना, और इस रात में फ़रिश्तों की हाज़िरी होती है, फ़रिश्तों का नुज़ूल होता है, अल्लाह ताला बंदों की इबादतों को कबूल करता है और फिर उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से और आपकी सुन्नत से ज़र्रा बराबर भी कहीं इसका सबूत नहीं मिलता है। 12वीं चीज़ ये है जो बिदात है, कब्रों पर कुरान खानी करना, कुरान पढ़ना। कब्रों की ज़ियारत का हमें हुक्म दिया गया है, मगर कब्रों पर कुरान पढ़ने का हमें हुक्म नहीं दिया गया है। इसलिए आप देखिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत में और आपकी सुन्नत में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि सहाबा इकराम और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब बकी कब्रिस्तान में जाते थे, या शुहदाए उहुद या शुहदाए बदर या कहीं भी खबरों की ज़ियारत के लिए आप गए हों, वहाँ आपने न तो कभी कुरान करीम की तिलावत की, न सूरह बकरा की तिलावत की, न वहाँ पे कुरान लेके गए। जैसा कि आजकल हमारे समाज में 15वीं रात को, शाबान की 15वीं रात में, जिसको शब बारात कहते हैं, उस रात में लोग झुंड के झुंड और जमात की जमात और पूरा गांव और कबीला सब मिल करके अपने हाथ में कुरान लेकर के और जा करके वहाँ बैठेंगे कब्रों के पास और वहाँ कुरान खानी करेंगे। ये शक्ल और ये तरीक़ा इबादत का नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कभी भी सहाबा कराम को हुक्म नहीं दिया, और आप कभी भी शाबान की 15वीं रात को कब्रों की ज़ियारत और कब्रों पर कुरान खानी करने के लिए मखसूस किया है। और इसीलिए हमारी ये बातें जब होती हैं, हम अहलुल हदीस की या किताब व सुन्नत पर चलने वाली जमात की, तो बहुत सारे हमारे नौजवान, बहुत सारे मुसलमान ये तस्वूर करते हैं कि ये लोग हमको इबादत करने से रोकते हैं। हम इबादत के दुश्मन नहीं हैं, हम इबादत से नहीं रोकते हैं, हम मना करते हैं सुन्नत की मुखालफत से कि ये समाज और मुआशरे में बिदात के कबील से जड़ पकड़ ली है। हम इससे मना इसलिए करते हैं क्योंकि ये सुन्नत के खिलाफ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। हम इबादत से नहीं मना नहीं करते हैं। हम इबादत, आप इबादत दिल खोल कीजिए, सुबह शाम कीजिए, दिन रात कीजिए, इबादत मना नहीं है, इबादत तो मतलूब है। हम मना करते हैं सुन्नत की मुखालफत से, इसलिए कि अगर इंसान सुन्नत से हट करके जो भी काम करे, शरीयत से हट के जो भी काम करे, वो तरीक़ा, वो रास्ता, वो अमल गुमराही और बर्बादी का है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम अपने हर जुमे के खुतबे में कहा करते थे, फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। दीन में हर नई चीज़ गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। जो हमारे दीन में कोई ऐसी चीज़ इजाद करे जिसका ताल्लुक दीन से नहीं है, वो अमल मरदूद है, लिहाजा डरना चाहिए। हम दीन में उतना ही करें, वैसे ही करें, उसी तरह करें जैसे कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किया है और उसका तरीक़ा और सलीक़ा और अदब सिखाया है। हम सुन्नत की तरफ लौटें, इबादत में सुन्नत की तलाश करें कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा क्या था। अब ज़रा सोचिए एक लम्हा के लिए, क्या अभी जिन बिदातों खुराफात का तज़किरा अभी यहाँ किया गया है, क्या ऐसी शक्ल सहाबा इकराम के ज़माने में थी? क्या ये इबादत के तरीक़े अल्लाह के नबी ने बताए थे? सहाबा इकराम ऐसा करते थे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा, खैरुन्नास क़र्नी सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम। सबसे पहला मेरा ज़माना है, ताबईन का ज़माना है। हम ज़रा एक लम्हा के लिए सोचें कि प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि सबसे प्यारा ज़माना मेरा ज़माना है, सबसे बेहतर ज़माना मेरा ज़माना है, सहाबा का ज़माना है, ताबईन का ज़माना है, फिर उसके बाद जो लोग। तो अब बताइए कि जो सहाबा और असलाफ और अहद नबवी में ये सारी चीज़ें नहीं थी और सहाबा इकराम ऐसा नहीं करते थे, तो अब ये बात की पैदावार है, दीन में इजाफा है, तो ये बिदात हुई, इस्लाम से इसका कोई वास्ता नहीं है। लिहाजा हम दीन में दीन की तरफ लौटें और सुन्नत को सीखें, प्यारे नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े को सीखें।
اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی میں ہماری سلامتی ہے، اسی سنت کے ذریعے ہم دنیا میں عزت پا سکتے ہیں، سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں، اور آخرت میں جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو زیادہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کرنے والا بنائے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔